ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है एंड दैट इज़ द पोटेंशियोमीटर। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियोमीटर, एक टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा और बताता हूँ कि व्हाट इज़ द देयर इज़ अ नीड टू ऐड हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर across the cell. That means if we are going to measure the EMF of a cell, then actually we need to adjust a kind of high resistance voltmeter. The reason behind it कि whenever we go for the measurement of the EMF and we try to measure the EMF with the help of the low resistance voltmeter, तो sometime actually what is the standard EMF of the cell is not measured if the resistance of the voltmeter is less. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि suppose that we have taken a kind of EMF along with internal resistance and we have across the EMF we have connected a kind of voltmeter. This is EMF E and R, and this is voltmeter. So what happen if we connect a voltmeter across the EMF of a cell? So when we started to measure the EMF of the cell to the voltmeter, it actually come less. What is the standard of the EMF? तो अब इसको हमको क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है, एंड वी कैन चेक इट एज द करंट flowing through the circuit will not behave as a open circuit. So if we measure the current, I will become given as E upon R plus R. Now let the potential that is measured by the plate, since voltmeter is connected directly with the EMF, so potential is measured as V is equal to IR. Now we will place the value of I. Here we will have I E upon R plus R into R. Now what actually I want to say that if we take simply a kind of cell and we attach a kind of voltmeter across it, so suppose that we have taken a cell of standard 5 volt. 5 volt का हमने एक सेल लिया है whose internal resistance R is equal to 5 ohm. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, एंड सपोज दैट R is equal to 100 ohm. Now what is the actual EMF? It is given 5 volt. So the voltmeter should measure the potential, should also measure 5 volt, but it actually not happened. When we go throughout the measurement we will find that, इसको 2 वोल्ट कर लेते हैं, तो वी विल फाइंड बाय द पोटेंशियल इक्वेशन. इसमें अगर हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए V इज इक्वल टू E 2 हो गया अपॉन R प्लस R, ये हो जाएगा कितना 105, एंड R दैट इज़ 100, तो ये हो गया 200 अपॉन 105. Now exactly if the value of denominator becomes 200, so 200 to 200 will be cancelled out, still it is something very less. Now suppose that we have increased the given resistance into 200. जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं. In case when we take it as 200 ohm, then the potential will become, इसी फॉर्मूले में रखेंगे 2 upon R plus R,
आर अभी कितना हो गया 200 और 500, 5 205 और क्या हो गया आर की वैल्यू 200, तो इट विल बी समथिंग 400 अपॉन 205। तो एग्जैक्टली वी आर रीचिंग अप टू दिस वैल्यू। अभी इसी में और अगर हम क्या बढ़ा लें, इसी को 2000 ओम कर लें, तो वोल्टेज विल बिकम ई कितना है आपका, यहाँ लिखता हूँ, वी इन केस व्हेन आर विल बिकम इक्वल टू 2000 ओम, देन वी विल बिकम ई 2 वोल्ट आर 2000 अपॉन आर प्लस आर 2005, तो ये हो जाएगा 4000 समथिंग अपॉन 2005। तो अप्रॉक्सीमेटली वी आर रीचिंग टू द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द EMF। So the reason is just because of the low resistance. So to increase the EMF or to measure the standard form of the EMF, we always have to choose the appropriate unit of the resistance R, so that we can get the standard value or the EMF that is mentioned over the cell. तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो बेसिकली sometime in a board examination a question come, what would happen if we connect a kind of voltmeter across the EMF? Does the resistance, the value of the resistance should be appropriate for the measurement of the internal resistance or not? So exactly we should have to use a higher resistance across the EMF of the cell, just because of to getting the standard value whatever the cell is mentioned, जितना आपने लगाया है उतना क्या है बराबर है, तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसके क्रॉस हाई रेजिस्टेंस वायर लगाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। नो, इसके बाद हम लोग क्या करने चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं पोटेंशियोमीटर का डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर आपने लैब में भी देखा होगा। अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद है, तो लैब भी ऑब्वियसली बंद है और प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं। बट पोटेंशियोमीटर इज़ अ वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, एंड बेसिकली इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज इफ़ वी विश टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू गिवन प्राइमरी सेल, तो हम उसमें भी क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर में होता क्या है कि इट कंसिस्ट लॉन्ग वायर A and B, and from this wire, this end A, we connect a kind of battery, a kind of rheostat and plug की एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, that should use for vary the current, and the finally we connect it with the B end. B end से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। Now another part of cell point A of this wire is connected to the positive terminal of the cell. एक हमारा सेल लगा होता है E, suppose this is the battery, ये बैटरी B1 है and this is the primary cell, and from the negative terminal we connect a kind of galvanometer, and finally we connect it a sliding key that is called jockey. तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि वी हैव कनेक्टेड इट विद द बैटरी B1 and as well as cell E1. So there is a two kind of chances of current. एक तो करंट हमारी B1 से आ रही है और दूसरी करंट हमारी क्या हो रही है, इधर से आ रही है। Now the position of the current as well as the touching point of the jockey
So here we can choose the different way of current. We will try to touch at different point. So this is J1, suppose that, and this is a case J2. Now here two things should be remembered here. The two different way of the current and the potential, if we push the jockey, potential across AJ1 or potential across AJ2 will determine which current will predominate to which current. मतलब कौन सी करंट किसको क्या करेगी, प्रीडोमिनेट करेगी. सपोज दैट पहले हम क्या करते हैं, जब जॉकी को क्या करते हैं, यहाँ पे टच कराते हैं. तो जब जैसे इस पॉइंट पे टच कराते हैं, तो इस पॉइंट पे टच कराने पे जो पोटेंशियल अक्रॉस AJ1 आता है फर्स्ट केस में, इट इज़ एक्चुअली लेस दैन EMF ऑफ द सेल. Potential across AJ1 is less than EMF of the cell. So in this case, the current flowing through this will predominate to the current flowing from the battery. First case में the current, देखिए दोनों साइड से करंट आ रही है, यहाँ से भी करंट आ रही है, इधर से भी करंट आ रही है, बट द पोटेंशियल अक्रॉस AJ1 जो है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दैट इज लेस दैन EMF ऑफ द सेल. अभी अगर EMF ऑफ द सेल से क्या हो गया, पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो लेस देन सेल है. तो इन सच अ केस दिस करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस वन, यानी AEJ1 के थ्रू जा रही है, दिस विल बी लेस, और वी कैन से दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन विल बी प्रीडोमिनेट टू द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ. सो हमारी करंट क्या हो जाएगी, हमारी करंट जो होगी ये वाली फ्लो करेगी, यानी सेल से. तो द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द EAJ. तो हमारा क्या होगा, EAJ1 की तरफ से जाएगा. तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर इन दिस साइड, इस साइड मिलेगा. व्हेन वी प्लेस द जॉकी टू दिस पॉइंट, यहाँ पे रखते हैं, J1 पॉइंट पे रखते हैं. एंड अगेन इफ वी टच द जॉकी टू द J2 पॉइंट, अभी J2 पॉइंट पे रखते हैं, तो वी आर गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ2. अब जैसे ही इसको आपने उठा करके यहाँ पे रख दिया, तो वी आर गेटिंग द पोटेंशियल अक्रॉस AJ2. नाउ इन सच अ केस द पोटेंशियल अक्रॉस AJ2 विल बी ग्रेटर दैन EMF ऑफ द सेल. अब इस केस में क्या हो गया कि द करंट दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी B1 विल प्रीडोमिनेट द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सेल. तो एक बार क्या होगा, बैटरी की सेल प्रीडोमिनेट करेगी सेल की करंट को, और एक बार क्या होगा कि सेल की करंट प्रीडोमिनेट करेगी बैटरी की करंट को. तो इन बोथ ऑफ द केसेस, इन द फर्स्ट केस द पोटेंशियल अक्रॉस AJ1 will be less than EMF of the cell, so the current flowing from the cell will predominate the current flowing from the battery B1. तो इस समय करंट हमारी इधर से फ्लो होगी, तो हमको डायरेक्शन डिफ्लेक्शन इधर मिलेगी. सेकेंड केस में जब जॉकी को यहाँ पे रखेंगे, तो पोटेंशियल अक्रॉस AJ2 विल बी greater than EMF of the cell. Potential across AJ2 will be greater than EMF of the cell. In such a case, the current flowing from the battery will predominate the EMF of the cell. यानी करंट जो बैटरी से आ रही है, it will predominate the current flowing from the cell. तो इस समय हमको क्या मिलेगा, करंट की डिफ्लेक्शन दूसरी मिलेगी. तो इन दोनों केसेस में हमें गैल्वानोमीटर में दो अलग अलग टाइप का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन मिला. लेकिन इफ वी try to find out somewhere as a such a place where galvanometer show no deflection. Now in case what is the meaning of no deflection? Suppose that we place the jockey at point J. तो J पे रखते हैं, तो no deflection की meaning है ना तो पोटेंशियल अक्रॉस AJ बड़ा होगा किसे, EMF ऑफ द सेल से, और ना EMF ऑफ द सेल विल बी ग्रेटर दैन पोटेंशियल अक्रॉस AJ1. तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, यहाँ की कंडीशन ये है कि पोटेंशियल अक्रॉस AJ, J इज द पॉइंट वेयर वी गेट द नल डिफ्लेक्शन. ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है. तो पोटेंशियल अक्रॉस AJ विल जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू EMF ऑफ द सेल. तो हमारा क्या हो गया, जब पोटेंशियल अक्रॉस द वायर हमारा जो हो रहा है वो EMF ऑफ द सेल के बराबर हो गया, तो that will be the condition for the exactness of the EMF will be just equal to the length
अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें जो मिल रहा है दैट विल बी द नल पोजीशन। नल पोजीशन की कंडीशन मिल जाएगी जहां पे पोटेंशियल अक्रॉस द वायर विल बी जस्ट इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इस केस में क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एज V will be equal to K into L, where K क्या है, K is the potential gradient। K क्या है हमारा, potential gradient, और इस potential gradient की वैल्यू क्या होगी, I into रो डैश। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होगी, या हम यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल इज जस्ट एग्जैक्टली टू ईएमएफ ऑफ द सेल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू K ऑफ L। एंड एक्चुअली दिस मेथड इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ ऑफ द सेल। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, दो प्रैक्टिकल करना पड़ता है। पहला कि वी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू गिवन प्राइमरी सेल, दो प्राइमरी सेल का हमको क्या करना पड़ता है, ईएमएफ निकालना पड़ता है। इसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस की हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो दिस इज द मैथड हाउ टू वी टेक द वर्क ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब हम पोटेंशियोमीटर को समझ गए हैं किस तरह किस तरह से इसको काम लेना है। नाउ आफ्टर इट वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, दैट इट हाउ टू वी यूज इट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करना होता है उसको कैसे बनाएंगे, एंड आफ्टर इट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। तो ईएमएफ निकालने का तरीका आपका यही होगा, बस अंतर ये है कि हम यहाँ पे जो एक सेल लगाते हैं इसी में हम क्या कर लेंगे, दो सेल लगा देंगे। देखिए कैसे करते हैं, सर्किट डायग्राम समझते हैं, समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें लॉन्ग वायर लगे होते हैं, 8 से 10 मीटर तक के लगे होते हैं, लंबे लंबे तार लगे होते हैं। अभी थोड़ा लैब में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे, यू विल फाइंड द 2 पॉइंट्स A एंड B, ऐसे करके 2 पॉइंट लगे होते हैं A और B, और इसी में से तार क्या होते हैं, ये फाइनली फिर क्या होता है हमारा पॉइंट B, इसी पे मान लीजिए B यहाँ पे है, इसी पे क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। ईच लेंथ कवर अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 इंटू 100 कर लेते हैं, यानी लगभग आपका 1000 सेंटीमीटर की ये बराबर है, या 10 मीटर की लेंथ का हमने वायर ले लिया है, ठीक है। अब इसका जो कनेक्शन करते हैं वो समझ लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। कि फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेल का ईएमएफ निकालने चलते हैं। तो होता क्या है कि वी टेक द पॉइंट ए, सबसे पहले पॉइंट ए से शुरू करते हैं। तो पॉइंट ए से हम 3 वायर कनेक्ट करते हैं। ए से क्या करते हैं, 3 वायर। पहला वायर ये क्या करते हैं, जो बैटरी हमने लगाया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, अभी देखिएगा पहले 3 वायर हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। द सेकेंड एंड द थर्ड वायर इज आल्सो कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इनको भी क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये बैटरी थी हमारी B1, ये दोनों हमारे क्या थे, सेल
E1 and E2. Now E1 and E2 is connected with the two-way plug key. अब टू वे प्लग की क्या होता है, ये भी आप समझिए ऐसे कि यहाँ पे दो की लगी होती हैं, ठीक है, एक K1 होती है, एक K2 होती है। यानी व्हेन वी हैव टू ऑपरेट विद दिस सेल, तो हम K1 को ऑन करेंगे, K2 को ऑफ कर देंगे, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू ऑपरेट विद दिस सेल, तो हम K2 को ऑफ कर देंगे, K2, तो एक को ऑफ करेंगे, एक को ऑन करेंगे। एंड फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस वी कनेक्ट अ गैल्वानोमीटर, एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं, इसमें एक शंट लगा देते हैं, एंड फाइनली विथ कनेक्ट इट विद द जॉकी। वर्किंग देखिए सेम है बिल्कुल जैसे अभी इसके पहले पढ़ाया है। नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद दिस सेल विच इज कनेक्टेड टू B1, ये बैटरी से जो कनेक्ट है, इसको हम क्या करते हैं, एक प्लग की, ये मान लीजिए प्लग की K है, इससे कनेक्ट करके फिर क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जस्ट फॉर द वैरी ऑफ द करंट, एंड देन फाइनली इट कनेक्ट विथ दिस पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, दिस इज द एक्चुअली दैट सर्किट डायग्राम। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू लैब यू हैव टू मेक एग्जैक्टली द सेम सर्किट डायग्राम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द EMF, फॉर द कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ द सेल। अभी जो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग बताए थे, इन द सेम वे फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द K1, इसको ऑन करना है, एंड वी विल टेक अ पोजीशन पॉइंट बाई ऑन पोजीशन ऑफ एक सेल को ऑन कर लेते हैं, वी विल गेट करेस्पॉन्डिंग E इज इक्वल टू या E1 इज इक्वल टू KL1, एंड सेकेंडली फिर आप क्या कर देंगे, एक सेल को ऑफ करके दूसरे को ऑन करेंगे, तो सेकेंडली विल गेट KL2। तो L1 L2 will be the length where we getting the no deflection, and simply we have to just divide it, E1 upon E2 is equal to KL1 upon KL2, K to K will be cancelled out, and E1 upon E2 will be just equal to L1 upon L2. So by knowing any one of the standard value of EMF of any one of cell, we can easily find out the another cell which is unknown for us, and we actually don't know what is the EMF of the cell. इसको नोट कर लीजिए, तो मैं दूसरा बता देता हूँ। Now in the another case, when we have to find the internal resistance, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में हमको फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू R E बाई V माइनस 1। वी विल गो थ्रू द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम होता है, जस्ट वी हैव टू चेंज दिस डायग्राम। यहाँ पे हमको डायग्राम को चेंज करना है, हल्का सा चेंज करेंगे बस, गैल्वानोमीटर वगैरह पड़ा रहने दीजिए वैसे ही। तो हल्का सा चेंज क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक क्या कर देंगे हम लोग, एक यहाँ पे एक सेल लगा देंगे जिसका EMF क्या करना है, मेज़र करना है, और इसी के क्रॉस क्या करा देंगे, एक नोन रेजिस्टेंस लगा देंगे। नोन रेजिस्टेंस दैट मीन रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। फिर इसको क्या कर देंगे, एक प्लग की से इसको भी कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए प्लग की K2 है, एंड दिस टाइम इसको मान लीजिए प्लग की क्या है, K1 है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करके और बाकी वही चीज़ है, आप गैल्वानोमीटर में इसको जोड़ दीजिए, and this is the cell whose internal resistance is need to measure।
तो फर्स्ट केस क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, K2 को ऑफ कर देंगे। K2 को ऑफ करने पे क्या हो जाएगा, K1 को ऑन करेंगे, सो दैट वी विल गेट द EMF and we will try to place the jockey and anywhere on the wire we get null deflection, then we get actually E is equal to KL1. the first case, पहले केस में K1 को ऑन करना है, K2 को ऑफ करेंगे। as we put K2 in off position we get in the potentiometer, in the galvanometer, the null deflection on the wire and this is the EMF of the cell. that will be the first equation. अब सेकेंडली क्या करेंगे, सेकेंड केस में K2 को भी ऑन कर देंगे। K2 को ऑन करने से पहले एक नोन रेजिस्टेंस R निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए 2 ओम 3 ओम जो भी निकाल रहे हैं। तो नाउ वी आर गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर और उस समय आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू KL2 मिल जाएगा। सो E बाई V क्या हो जाएगा आपका, E बाई V क्या हो जाएगा, L1 बाई L2। E बाई V क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ E बाई V दैट इज L1 बाई L2 इन द गिवन इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो R बराबर, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, E बाई V R, E बाई V दैट इज L1 बाई L2 माइनस 1। अब हमें पता है L1 क्या है, L2 क्या है, R भी हमारा नॉन रेजिस्टेंस है। सो बाय दिस मेथड वी कैन गेट ईजिली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। इसको नोट कर लीजिए। So I hope you better understand the concept of the potentiometer. तो किरचॉफ रूल हो गया, मीटर ब्रिज हो गया और पोटेंशियोमीटर हो गया। दीज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज भी ले लेते हैं। तो दीज 4 टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड बेसिकली वी हैव टू ट्राई मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल एज वेल एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली उसको थोड़ा सा बैठ करके पढ़िएगा, इसको भी थोड़ा सा पढ़िएगा तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। 1-2 बार आप पढ़ लेंगे, अपने से पढ़ लेंगे तो आपको एकदम से डाउट इसका क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली मीटर ब्रिज एंड द पोटेंशियोमीटर आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। सो व्हेन एवर यू गेट द चांस टू गो थ्रू द लैब, तो लैब में जाके इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से, क्योंकि कभी कभी होता है कि बुक में जो होता है उसको पढ़ने समझ में नहीं आता, उसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो जस्ट आई होप स्कूल जल्दी खुले और आपको लैब जाने का मौका मिले। और इससे बेटर 2 प्रैक्टिकल इससे भी करते हैं।